میں ہمارے انجمن خادم الحجاج کے شریک معتمد جناب محمد عبد المقتدر تاج سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ قرأت کلام پاک سے آج کے اجلاس کا آغاز کریں۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل۔ محترم عازمین حج، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیزن 2020 کے لیے یہاں انجمن خادم الحجاج پر حج 1999 میں قائم ہوئی اور الحمدللہ گزشتہ 20 سالوں سے مسلسل یہ حاجیوں کی خدمت میں لگی ہوئی۔ آج یعنی حاجیوں کے درخواست فارم کی خانہ پوری سے لے کر حج تربیتی کیمپ کے انعقاد تک اور مختلف عنوانات کے تحت حاجیوں کی جو رہنمائی ہوتی ہے اس رہنمائی کو لے کر اور پھر اس کے بعد ان کے ٹریننگ کیمپ یعنی تربیتی پروگرام کے انعقاد کے سلسلے میں اور پھر ان کی روانگی کے معاملے میں حج ہاؤس حیدرآباد تک جانے اور وہاں سے انہیں ایئرپورٹ جانے تک، پرواز کرنے تک، اور پھر وہاں پر بھی سعودی عرب میں بھی اگر کوئی ان کے لیے کوئی پریشانی یا دقت پیش آتی ہے تو اس وقت بھی یہاں سے حج کمیشن آف انڈیا سے رابطہ قائم کرتے ہوئے انجمن خادم الحجاج ضلع بیدر کے تمام آپ لوگ جب وہاں پر خانہ کعبہ میں جب حاضری ہو، اللہ کے دربار میں جب موجود ہوں، وہاں پر انجمن کے لوگوں کو، ہم تمام لوگوں کو آپ یاد کریں اور اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں، اور روضہ اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حاضری ہو تو وہاں روضہ اقدس پر ہمارا سلام حضور کے سامنے پیش کریں کہ یا رسول اللہ، اللہ کے یہ مہمان جنہیں اللہ منتخب کر کر بلا رہا ہے، ان مہمانوں کی ہم سے جو کچھ ہو چکی، ہم نے خدمت کی، آپ تک ہمارا سلام عرض ہے، اور ہم اس کے ساتھ وہ چاہے کسی بھی عمر کا ہو، نوجوان ہو یا کیا بھی ہو، اس کے ساتھ جا سکتا ہے، اس کی اہلیہ بھی ہو سکتی ہے، وہ کم عمر کی بھی ہو سکتی ہے، جا سکتی ہے۔ تو اس طرح اس کے علاوہ جو لوگ جانے پروف چل سکتا ہے، سب سے ترجیحی بنیاد پر آدھار کارڈ۔ اس کے بعد آپ کو جو ہے الیکشن پہلے نمبر لگے گا، دوسرا نمبر پہ بھرنے والے کا نمبر بعد میں لگے گا، ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ میری طلب بھی تیرے ہی دین کا صدقہ ہے، میری طلب بھی یعنی جانے کی جو خواہش اور تڑپ ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی جانب سے ہی ہوتی ہے۔ شاعر کا کہنا یہ ہے کہ میری طلب بھی تیرے ہی دین کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، عشق کے دعوے دار تو لاکھوں ہیں، منتخب ہی بلائے جاتے ہیں۔ یہ یقینی بات ہے کہ منتخب اشخاص کو اللہ تعالیٰ وہاں بلاتے ہیں۔ منتخب کا مطلب یہ نہیں کہ جن کا نام ڈرامے آ گیا ہے، وہ جو حج پرائیویٹ حج کو جو جا رہے ہیں وہ منتخب نہیں ہے، ایسی بات نہیں رہتی۔ سارے کے سارے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے گھر پر حاضری کا شرف بخشے وہی منتخب ہوتے ہیں۔ تمام لوگوں کا انجمن خادم الحجاج کی جانب سے پرتپاک استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے
न सिर्फ हज के फॉर्म को भरने को कबूल करे बल्कि आपको मुंतखब फरमाए और अपने पाक घर पर आज के 2020 साल की इजराई के मौके पर बीदर के खादिम हुज्जाज की जानिब से छोटी सी तकरीब मुनक़िद की गई है। ये बीदर खादिम हुज्जाज बड़ी ही खुश असलूबी के साथ हाजियों की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमाए और आप लोगों को भेजने के लिए जो इंतज़ाम करते हैं शाहिदी के ज़िले में इतने बेहतरीन इंतज़ाम होते हों। मैं 2013 में गया था हज को। हमारे यहाँ से निकलने से लेके पूरा प्लेन में बैठने तक, फिर वापसी में प्लेन से उतरने से लेके बीदर आने तक ये लोग जो खिदमत अंजाम देते हैं ये काबिल दाद है। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है इनके हक़ में दुआ फरमाइए और सारे मुसलमानों के हक़ में दुआ फरमाइए। और आज का जो ये पूरा शुभ जो दौर है, ये पूरा शुभ दौर में मुसलमानों के जान के, माल के, इज्जत की, आबरू की तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी दुआ फरमाइए। अमन व अमान के लिए दुआ फरमाइए, शहर के अमन व अमान के लिए दुआ फरमाइए। और यहाँ पर आज से लेकर दरख्वास्त फॉर्म भरने की आखिरी तारीख तक बाज़ वक्त इसमें तोसी भी होती है, बाज़ वक्त नहीं भी होती है। आखिरी तारीख का इंतज़ार ना करो बल्कि तमाम लोग अपने अपने दरख्वास्त भरें। ये पहला जो है एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये 2020 के फार्म की जो रस्मी इजराई है हाजियों के लिए, ये खादिम हुज्जाज बीदर की जानिब से मुनक़िद की गई एक छोटी सी तकरीब थी। आज यहाँ पे जो फार्म की इजराई हुई है और ऑनलाइन फार्म पुर किया गया है और इस साल जाने वाले तमाम हाजियों के लिए बेहतरीन मौका है कि वह आज से इस फार्म की आगाज़ हुआ है। और जो भी ख्वाहिशमंद हजरात हैं यहाँ पे जैसा तफसील बताई गई है, अपने तमाम मुंसलिक जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट के साथ खादिम हुज्जाज ऑफिस में रुजू हो के अपने फार्म को पुर किया जा सकता है और 2020 के इंतखाब में हिस्सा लिया जा सकता है। और जो भी ख़रानदाजी के ज़रिए जो भी हाजी सेलेक्ट होंगे उनको जाने का मौका दिया जाएगा और उनकी खिदमत के लिए ये कमेटी हर वक्त तैयार है। मैं इस कमेटी का शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने 8-10 साल से बड़ी हुस्न खूबी के साथ यहाँ पे हाजियों की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और मैं दुआगो हूँ ये कमेटी के तमाम मेंबरान के लिए अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे और इनको सेहत व आफ़ियत के साथ रखे और इनकी मज़ीद खिदमत को कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज यहाँ दफ्तर अंजुमन खादिमुल हुज्जाज पर हज सीज़न 2020 के लिए आज़मीन हज की दरख्वास्त फॉर्म की इजराई की तकरीब अमल में आई। अंजुमन खादिमुल हुज्जाज 1999 से यानी कम अज़ कम 20 साल से गुज़िश्ता तमाम हाजियों की खिदमत में बिल्कुल मसरूफ़ है और इस तरह से खिदमत करती है कि दरख्वास्त फॉर्म की इजराई से लेकर हज जाने तक और इस दरमियान में उन्हें जितने भी जो है ज़रूरतें होती हैं उन तमाम ज़रूरतों की तकमील के लिए, तमाम इंफॉर्मेशन सूचना पहुँचाने के लिए और हज कैंप के
तरबियती इज्तिमात के इनेकाद के सिलसिले में हर मामले में अंजुमन खादिमुल हुज्जाज हाजियों की रहनुमाई करती है और इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है कि जब हाजी हज पर जाएं और रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी हो वो अंजुमन के तमाम लोगों को याद रखें। ये जो आज जो तक़रीब अमल में आई इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि इस हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से एक महफूज ज़ुमरा रखा गया है 70+ का, यानी मुअम्मर हजरात जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा हो चुकी है वो महफूज ज़ुमरे के तहत यानी रिज़र्व्ड कोटे के तहत आते हैं। उन्हें बग़ैर खुराक के डायरेक्ट मुंतखब करार दिया जाएगा। वो जब यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए आएँ अपना ओरिजिनल पासपोर्ट साथ लाएँ और इस खुशखबरी के साथ आएँ कि उनके इरादे के साथ ही अल्लाह ताला ने उनका इंतखाब कर लिया है। और बाकी जो लोग हैं वो लोग इंतखाब के ज़रिए उनका इंतखाब अमल में आएगा खुराक के ज़रिए, यानी अगर हज को जितना कोटा हमारा मुकर्रर है उससे ज़्यादा एप्लीकेशन है तो खुराक अंदाज़ी होगी। गुज़िश्ता कई सालों से खुराक अंदाज़ी के ज़रिए ही ये इंतखाब अमल में आ रहा है, तो इस मरतबा भी ऐसे ही होगा। तो मुंतखब होने वाले तमाम हाजियों के लिए अभी से जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि कोटा बढ़ा दिया गया है सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से इंडिया के लिए। तो उम्मीद है कि जितनी दरख्वास्तें भरी जाएंगी तमाम के तमाम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है तो भी जो है अल्लाह ताला का ये ज़ाब्ता है कि जब बंदा किसी नेकी का इरादा करता है तो उसके साथ ही उसके नाम-ए-अमाल में उसका इंदराज हो जाता है तावक्ते कि वो उसको मुकम्मिल नहीं करता। बजाय इसके अगर वो किसी गुनाह का इरादा करता है तो जब तक वो गुनाह कर नहीं लेता तो अल्लाह ताला उसका कोई जो है गुनाह उसके खाते में नहीं लिखता। तो इस तरह इरादा करना भी बहुत बड़ी बात है। तमाम आज़मीन को मैं मुबारकबाद देता हूँ और तमाम शहरी ज़िला बीदर के मुसलमानों से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी के इस अहम फरीज़े को यानी हज की अदायगी के लिए अपने आप को आगे लाएं। कारोबार वगैरह तो ज़िंदगी भर चलते रहते हैं, जो साहिब इस्तिताअत है उन पर हज फ़र्ज़ है और जिन पर फ़र्ज़ हो चुका वो एक लम्हा ज़ाय ना करें बल्कि सभी आएँ और आकर यहाँ पर दरख्वास्त फॉर्म भरें और अंजुमन खादिमुल हुज्जाज की खिदमत से मुस्तफ़ीद हों। हमारे सदर साहब अलहाज सैयद सग़ीर अहमद साहब की निगरानी में और नायब सदर साहब जो हमेशा यहाँ पर मौजूद रहते हैं अख्तर मुहिउद्दीन साहब, इनकी निगरानी में यहाँ पर दरख्वास्त फॉर्म ऑनलाइन खाना पूरी हो रही है। हमारे तमाम अंजुमन के जो ज़िम्मेदारान हैं ये बड़ी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं। सभी की अपनी अपनी इनफरादी कोशिश है। अल्लाह तमाम की कोशिशों को कामयाब करे और हमारे इस काम को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो अंजुमन के दफ्तर पर आएँ। 10:30 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक अंजुमन खादिमुल हुज्जाज का दफ्तर खुला रहेगा। आप आएँ, आकर यहाँ से खिदमत से इस्तिफ़ादा करें। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, अगरचे आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।